हेलो टॉपर्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इस सीरीज में लीनियर अलजेब्रा को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि मैट्रिक्स अलजेब्रा होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में देखेंगे हम लोग, और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में देखेंगे। सारे बेसिक डिफिनीशंस, सारी थ्योरीज एंड ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगिनिंग विद द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स इज a rectangular array of elements. Matrix is a rectangular array of elements. For example, अगर हम इसे एक मैट्रिक्स बोलें, तो मैट्रिक्स is a set of n numbers which are arranged in the form of rectangular array having m rows, this is number of rows, and n columns. So this is basically known as the matrix, and here we can fill any elements like here there are 3 rows, so m is equal to 3, and here there are 3 columns, so n is equal to 3 also. So it is a 3 cross 3 matrix. A matrix can be of two types, like it can be a square matrix and it can be a rectangular matrix. So here it is m is equal to n, so this is a square matrix, and if m will not be equal to n, then that will be a rectangular matrix. इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। माइनर होता है किसी भी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का, मान लेते हैं ये एलिमेंट ए, इस एलिमेंट के लिए माइनर क्या होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों डिलीट करके जो भी एलिमेंट या जो भी मैट्रिक्स बचती है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू इस एलिमेंट के लिए माइनर होगी। तो यहाँ ए के लिए माइनर डी हो जाएगी। ठीक है, तो यही माइनर का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर माइनर का ही साइन कन्वेंशन फॉर्म होता है, और इसको हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। For example, if this was the matrix, if A is a square matrix with elements A, B, C, and D, here the cofactor for this matrix will be just the sign convention form of minor. That is, for A it will be equal to D, for B it will be equal to C but in negative form as per this formula, and for C we will be getting B but in negative sign, and for D we will be getting A. So this is the cofactor of this matrix. So in 2 cross 2 matrix, basically the sign convention form follows this fashion, and for 3 cross 3 matrix, same thing is followed like this. So for 2 cross 2 matrix, and this is for 3 cross 3 matrix, and similarly using this formula of cofactor, we can determine the cofactor of given matrix. Now we can determine the determinant value of this matrix. The determinant of a square matrix is the sum of the product of elements of a row or column with their corresponding cofactor. Okay, so here the determinant will be AD minus BC. So simply these are the basic things. Let us move on to the basic definition part. Now let us start with identity of unit matrix. So what is a unit matrix? A square matrix, each of whose diagonal elements are unity and non-diagonal elements are zero. So identity matrix कैसा हो सकता है? It can be like all the diagonal elements will be 1. All the diagonal elements will be unity. Rest of diagonal elements are 0.
Here the diagonal elements, all the diagonal elements are unity. Here all the diagonal elements are unity. So it is a unit matrix, or also we can call it as identity matrix. Now what is a null matrix? Null matrix में सारे के सारे elements zero होते हैं. It is a m cross n matrix in which all the elements are zero. So if you write the example of null matrix, it will be like this. So it will be a null matrix of order 3 cross 4. There are 3 rows and 4 columns. So it is an example of null matrix. Now what is a row matrix? रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होता है, इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे और ये एक 1 क्रॉस n ऑर्डर का रो मैट्रिक्स होगा. सिमिलरली एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा, जैसे 1 2 एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं इस कॉलम मैट्रिक्स में, और ये n क्रॉस 1 ऑर्डर का एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा. अब व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब मैट्रिक्स? सब मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ मैट्रिक्स विद द एलिमेंट. सो इस मैट्रिक्स में अगर हम एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाते हैं इसे निकाल के 1 and 2, so it is also a matrix. It is a sub matrix of A. We can form a matrix using these 4 elements. We can form a matrix using these 2 elements. We can form a matrix using these 4 elements. So any number of elements can be used to form a new matrix from this matrix A. So all the new formed matrices will be a sub matrix of A. Here A itself is a sub matrix of A. Now let us move on to the triangular matrix. एक हमारे पास होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो ये सारे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कैसे मतलब लिखे जाते हैं, क्या होते हैं, लेट अस सी. किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानेंगे कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? तो फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का होना चाहिए. उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं लाइक तो इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बस इस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ही होंगे, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे. तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा. ओके, यहाँ पे केवल this row, this and this, only this will be filled. So it will be an upper triangular matrix. और अगर हम लोग देखें किसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को तो वो कुछ इस तरीके का होगा. फॉर एग्जांपल द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विल बी लाइक इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हैं सारे एलिमेंट्स होंगे, उसके ऊपर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे. सो इट विल बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ पे केवल और केवल एक लोअर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा. So these matrix will be a lower triangular matrix and these will be a upper triangular matrix. Now what is a diagonal matrix? Diagonal matrix में केवल और केवल diagonal elements ही नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे ऑफ diagonal elements जीरो होंगे. If we are writing a diagonal matrix, then the elements will be like something 2 1 4. Only the diagonal elements will be non zero. The rest of diagonal elements will be zero. So this is a diagonal matrix. Here only the diagonal elements are non-zero. Now what is a scalar matrix? A scalar matrix is a type of diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. So अगर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल को देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक all the diagonal elements will be equal. So this will be a scalar matrix. Here all the diagonal elements are same. So this is a scalar matrix.
Now let us move on to the next definitions, like what is meant by idempotent matrix, what is meant by involutory matrix, and what is meant by a nilpotent matrix. So if we are talking about idempotent matrix, so the condition for a matrix to be idempotent is the square of matrix should be equal to itself. किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स से इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होगा, वो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही जिसके कि डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। और नील पोटेंट मैट्रिक्स a square matrix is said to be nilpotent if there exists a positive integer m, okay, such that this a raised to power m will be 0 if such condition is satisfied in the case of any matrix. M here is any least positive integer. So if any m is existing such that a raised to power m is 0, then that matrix will be called as nilpotent matrix. Now what is trace of a matrix? The sum of elements of any matrix lying along the principal diagonal is known as the trace of a matrix. जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 5 2 1 9 1 2 1 7. I have taken the elements randomly. So what is the trace of this matrix? Trace will be the sum of the principal diagonal elements. So trace here will be 1 plus 9 plus 7, that is 17. Trace of this matrix will be 17. Now what is transpose of a matrix? Transpose of a matrix is obtained by changing the rows into columns. So if for example A is any matrix 2 1 3 4, so we can obtain the transpose of this matrix, that is A transpose, or it is also written as A raised to power t. A transpose will be equal to, the rows will be changed to columns. This is the row, this will be changed to a column here, and the second row 3 and 4 will be written as second column. So this is the transpose matrix of this A matrix. Now what is the conjugate of matrix? The matrix obtained by taking complex conjugate of a matrix is known as conjugate of a matrix. Like if we are taking a matrix like 2 plus 3i 4i 4 and minus 4i. So here the complex conjugate of this matrix will be 2 minus 3i. The complex conjugate of first element will be this, and the complex conjugate इस टर्म का minus 4i, और ये 4 इसका 4 ही हो जाएगा, और minus 4i का complex conjugate 4i हो जाएगा. तो ये हुआ इस मैट्रिक्स का complex conjugate of a matrix. Okay, now let's move on to the other definitions, like what is symmetric matrix? A matrix is said to be symmetric when its ijth element is equal to jith element. So there will be a necessary and sufficient condition for any matrix to be symmetric, like that matrix should be equal to its transpose. Like if a matrix is equal to its transpose, so for any matrix to be symmetric, this is the condition, that it should be equal to its transpose. Now what is a skew symmetric matrix? A skew symmetric matrix is such matrix in which any ijth element is equal to negative of jith element. Now the necessary and sufficient condition
For a matrix to be skew symmetric will be A transpose should be equal to negative of A. Now what is a Hermitian matrix and a skew Hermitian matrix? A square matrix is said to be Hermitian if ith element is same as the complex conjugate of the jith element. Like ith element should be equal to complex conjugate of this jith element. और एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होंगे। ठीक है, or what is a skew Hermitian matrix? It will be a matrix in which the ith element is negative of complex conjugate of jith element. So mathematically it will be written as Aij is equal to negative of Aj and its conjugate. So it will be a skew Hermitian matrix. And in the case of skew Hermitian matrix, the diagonal elements will be purely imaginary. Now, a statement, an important statement will be like every square matrix is uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. And every square matrix is also uniquely expressed as sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. Okay, so that representation can be in this way, like so here this matrix will be symmetric and this will be skew symmetric. Here this will be Hermitian and this will be skew Hermitian matrix. So ultimately किसी भी Hermitian matrix केस में किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होता है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के इक्वल होता है. So that's all about symmetric matrix, skew symmetric matrix, Hermitian matrix and skew Hermitian matrix. Now let us move on to the inverse of a matrix. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा. अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है तो सबसे पहले हमें उसका एडजॉइंट निकालना होगा, फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी होगी. तो एडजॉइंट क्या होता है? वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज. सो और इस तरह हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं. इस एडजॉइंट का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि याद रख सकते हैं हम लोग, वो है if a matrix is multiplied with its adjoint, then it will be equal to determinant of that matrix multiplied with identity matrix. So this is some important relation which can be remembered. Now what is orthogonal matrix? A matrix will be said to be orthogonal if it satisfies this criteria. Multiplication of A with A transpose should be equal to a unit matrix. So that will be the condition for orthogonality of the matrix. So this orthogonality implies that
A into A transpose should be equal to I, and it should be also equal to A transpose into A. So this is the condition of ऑर्थोगोनैलिटी। और इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स के एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 होता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और उसी को हम लोग नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 0, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिंगुलर और नॉन इन्वर्टिबल। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होता है तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है, और उसी को हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है तो उसके लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा, द determinant value of inverse of A will be equal to the reciprocal of this determinant value of A, and this adjoint will follow this relation also. Adjoint of A is equal to the determinant value of A multiplied with inverse of A. These are various properties of adjoint of matrix. These various relations can be remembered directly for solving some problems, some competitive level problems, and these can be asked directly also in exam, so this can be kept in mind. And also let us move on to the properties of determinant of any matrix, that is represented by these symbols. So what is a determinant of a matrix? The definition has been mentioned here: the sum of the product of elements of a row or column with their corresponding cofactor is known as the determinant value of the square matrix, and its properties are mentioned below here. The determinant value of A and B matrix multiplied together is equal to the determinant value of A multiplied with the determinant value of B. Here we can see a note point that the same relation don't holds for the addition of matrices. So this relation A raised to power n is equal to the determinant value of the matrix raised to power n. So this relation holds. The determinant value of A is equal to the determinant of transpose of A. The determinant value of identity matrix of n order is equal to 1. And if we have to determine the value of determinant in the case of triangular or diagonal matrix, then it will be the product of its leading diagonal elements itself. And if we'll be talking about some square matrix in which each element of any row or column is 0, then in that case the overall determinant value of that matrix will be 0. And if two rows or two columns in any square matrix are identical, they are similar, then in that case the value of determinant will be also 0. And if we'll talk about any skew symmetric matrix of odd order, so in that case the determinant value of that matrix will be 0 always. So these were some properties of determinant of a matrix. Now let us have a look on the properties of matrix addition. So matrix addition के केस में अगर हम लोग किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं a plus b, so it will be equal to b plus a also. Means the matrix addition is commutative, and the matrix addition follows associative rule also. Means a plus b plus c will be equal to a plus b in addition with c. Means it also follows associative property. And also existence of additive identity is seen in the matrix addition. Like if we will add some null matrix, then it will give the same matrix as it was, and it will be called as this matrix will this null value will be called additive identity. And in the case of matrix addition, additive inverse also exists. If we are adding negative of a matrix to itself, then it will be 0. So this negative matrix will be called additive inverse, and this will be additive identity. Now let us have a look on the properties of matrix multiplication. So in case of matrix multiplication, we know that if A is any matrix of order m cross n, and B is any matrix of order n cross B, then only these two matrices can be multiplied. Means these two values should be same. The column of first matrix should be equal to the row of the second matrix,
then only these two matrices can be multiplied. And order of multiplied matrix will be M cross P. So this can be kept in mind. Now we can note that matrix multiplication is associative in nature. Means if AB is multiplied with C, then it will be equal to A multiplied with BC. So this is associative property. And also matrix multiplication is distributive with respect to addition of matrix. Like if B plus C multiplied with A is multiplied, it will be giving expression as AB plus AC. And also as we have seen that matrix addition is commutative, here this matrix multiplication is not always commutative. Means AB is not equal to BA always. Means it is not always commutative. But it may happen that AB can be equal to BA, and in that case, matrix A will be said to be commuting with matrix B. And if AB is equal to minus BA, these two matrices will said to anti-commute each other. And also we can take note that if AB multiplication of A and B matrix is 0, it does not imply that any of these matrices should be a null matrix. Like for example, we can see if there is matrix 0, 1, 0, 0, and it is multiplied with 1, 0, 0, 0, then in that case, if you multiply, you will get a null matrix. And these two matrices are not null matrices. So this does not imply that any of the matrix should be definitely a null matrix. So these are some properties of matrix addition and matrix multiplication. और ये तो ऑब्वियस है कि डिटरमिनेंट वैल्यू सभी को निकालनी आती होगी. जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी मैट्रिक्स लेते हैं. 1, 2, 7, 2, 1, 8 and 3, 3, 15. So if this is the matrix और हमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं? एक तो हमारा बेसिक सा मेथड है, जैसे इस एलिमेंट को कंसीडर करें और इसके अगेंस्ट जो माइनर होगा उसको यूज करें. सो 1 इंटू 15 माइनस 24, सो इट विल बी -9. ये होगा. फिर इसको निगेटिव साइन के साथ -2 को कंसीडर करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो होगा हमारा 30 माइनस 24, सो इट विल बी 6. एंड उसके बाद +7 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा 6 माइनस 3, सो इट विल बी 3. एंड अल्टीमेटली अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो डिटरमिनेंट वैल्यू आने वाली है -9 -12 +21 और ये होगी 0 वैल्यू. तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा. तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड और हम लोग इसको कोई और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. लाइक हम लोग इसी मैट्रिक्स को जस्ट 1, 2, 7, 2, 1, 8, 3, 3, 15 और इस मैट्रिक्स को हम लोग थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं आगे. मीन्स इसके आगे 1 और 2 को सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं. यहाँ सेकंड रो में भी सिमिलरली 2 और 1 को कॉपी कर देते हैं और थर्ड रो में भी 3 और 3 दोनों को कॉपी कर देते हैं. तो इसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनके डायगोनल एलिमेंट्स को हम कंसीडर करने वाले हैं. 1 के डायगोनल में 1 है, उसके डायगोनल में 15 है, 2 के डायगोनल में 8 और इसके डायगोनल में 3, 7 के डायगोनल में 2 और 2 के डायगोनल में 3. तो
और यहाँ पे इन सबका एडिशन हो जाएगा। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक। यहाँ पे 1 × 1 × 15 ये हो जाएगा 15 प्लस उसके बाद 2 × 8 × 3 ये हो जाएगा 48। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 48 और उसके बाद 7 × 2 × 3 वो हो जाएगा 42। इसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे उल्टे वाले डायगोनल एलिमेंट्स। लाइक यहाँ पे 3 के डायगोनल में चलते हैं हम लोग 1 और इसके डायगोनल में 7। तो 3 × 1 × 7 21 ये होंगे सारे नेगेटिव में। ओके, सो -21 3 × 8 × 1 that will be 24, so -24 and 15 × 2 × 2 that will be 60. So here it will be 60 and by solving you can get 0 value. So this method can also be used if you are not comfortable with multiplication. I think everyone is comfortable with this method. So these were the methods. Also you can apply some row operations for solving this, like here this is the matrix 1 2 7 2 1 8 and 3 3 15. So in this matrix you can apply some row operations, like we can use R2 के जगह पे R2 minus 2R1 and also R3 के जगह पे R3 minus 3R1 can take, as we are using first row to simplify this matrix by bringing some zeros into picture here, and यहाँ पे अगर zeros आती है तो मैट्रिक्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये दोनों रो ऑपरेशंस लगाकर हम लोग कुछ मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लाइक उसके बाद हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज 1 to 7, सेकंड रो R2 minus 2R1, 2 minus 2 it will be 0, 1 minus 4 so it will be -3, and here 8 minus 14 so it will be -6, and in third row we'll apply R3 के जगह पे R3 minus 3R1, तो यहाँ पे 3 minus 3 0, 3 minus 6 -3 and 15 minus 21 it will be -6. So if we will observe here, this second row 0 minus 3 and -6 and third row 0 minus 3 and -6, these two rows are coming similar. So if from the properties of determinant we know that if two rows in any square matrix are identical, then the value of determinant will be 0. So here we will see these two rows are identical, so this implies that determinant of A will be 0 directly. So this can be some ways to solve a determinant of any matrix. उसके बाद हम लोग रैंक को देखते हैं. What is rank of a matrix? So rank is the order of highest order non-zero minor. The order of highest order non-zero minor is called the rank of matrix. वो highest order matrix का जिसका की determinant value 0 ना हो, वो order rank कहलाता है. Means यहाँ पे कुछ points हैं. The rank of a singular matrix means उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी. तो वो रैंक ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन इट्स ऑर्डर. इफ 3 ऑर्डर का हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स वहां पे डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, तो उसका रैंक डेफिनेटली 3 नहीं होगा. तो उस मैट्रिक्स का, उस सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 3 से कम होगा. एंड नाउ इफ यू सी द सेकंड पॉइंट, अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, मीन्स कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, तो सिंपली उसका रैंक n हो जाएगा. थर्ड ऑर्डर का, अगर थर्ड ऑर्डर का हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा. फोर्थ ऑर्डर का है तो उसका ऑर्डर 4 हो जाएगा सिंपली. और कोई भी नल मैट्रिक्स हमारे पास, नल मैट्रिक्स जिसमें कि सारे एलिमेंट 0 होते हैं, वो जितने भी ऑर्डर का हो उसका रैंक 0 ही होगा. ठीक है, ये था कुछ रैंक से रिलेटेड पॉइंट्स. और ये प्रॉब्लम्स काफी कॉमन होता है. कोई मैट्रिक्स दिया होता है और उसका हमें रैंक निकालना होता है, तो हम लोग रैंक निकालने के लिए रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं उस गिवन मैट्रिक्स को. ये जो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं हम लोग किसी मैट्रिक्स को, तो उसके लिए या तो आइदर हम लोग रो ऑपरेशन कर सकते हैं या फिर
कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं। दोनों एक साथ अप्लाई नहीं होता है, और बेसिकली ज़्यादातर हम लोग रो ऑपरेशन से ही प्रेफर करें तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है। तो हम लोग रो ऑपरेशन को ही प्रेफर करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, वैसा फॉर्म जिसके आगे वो फर्दर रिड्यूस ना हो सके। और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर सम मैट्रिक्स लाइक 1 1 1 1 1 2 3 4 4 3 2 1. If this is a matrix and we have to calculate the rank of this matrix, rank is what? What observations we can make is like it, यह एक 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ओके, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे इसका रैंक कितना होगा, अगर यहीं से हमें एक अंदाजा लेना है तो यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हैं। ये जो रोज और कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं, इन दोनों में सबसे कम जो है, ठीक है, तो इन दोनों में जो सबसे कम है 3, तो इसकी रैंक या तो 3 होगी या तो इससे कम 2 1, ओके। सो यही हो सकती है। यहाँ पे हम लोग एक फर्स्ट अप्रोक्सीमेट आइडिया हम लोग लगा सकते हैं कि इसकी कितनी रैंक होगी। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे इसका जो गिवन मैट्रिक्स है उससे एक सब मैट्रिक्स निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसकी वैल्यू चेक करते हैं सबसे पहले। लाइक हम निकालते हैं ये वाली मैट्रिक्स सबसे पहले और इसकी वैल्यू चेक करते हैं। 1 1 1 1 2 3 एंड 4 3 2। इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? तो you can solve by any method. Let us use the traditional method. 1 into 4 minus 9, that is be minus 5, minus 1 into 2 minus 12, that is minus 10, plus 1 into 3 minus 8, that is 1 into 3 minus 8. So that will be minus 5 plus 10 minus 5, and its value will be 0. Also, let us see other submatrix of 3 cross 3, and इसकी determinant value हम लोग चेक करते हैं। 1 1 1 2 3 4 3 2 1। सो इसके लिए डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 3 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 9, so that will be equal to minus 5 plus 10 minus 5, again it will be 0. यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स यहाँ पे ऑर्डर 3 होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो लेट अस चेक सम मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस, कोई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स उठाते हैं और देखते हैं कि वो वैल्यू 0 आ रही है या नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो आ गई तो 2 ही हमारा इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। तो लेट अस सेलेक्ट दिस मैट्रिक्स 3 4 2 1, और इसकी हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो 3 माइनस 8, इट विल बी माइनस 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, suppose this is A matrix, and this rank of this matrix will be 2. सो ये तरीका तो है ही। तो इसके अलावा अगर हम रैंक निकालना चाहें तो रो इक्लोन फॉर्म में भी किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं और उसका रैंक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करने का भी एक एग्जांपल हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं रो इक्लोन फॉर्म में। सबसे पहले इस 1 वाले टर्म को ऊपर ले जाने का ट्राई करते हैं। तो कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं हम लोग? यू कैन मेक अ गेस, बिकॉज ये तो हमारी बेसिक्स होती है, हम लोग पहले क्लासेस में पढ़े होते हैं। R1 को R2 से एक्सचेंज कर देते हैं तो वो ए मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा रो एक्सचेंज होने के बाद 1 -1 -2 -4।
इसके बाद कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए कि ये रोज के एलिमेंट्स जितने एट मैक्स पॉसिबल जीरो आएंगे उतना ही हमारा ये मैट्रिक्स सिंप्लीफाइड होगा। ओके, तो ऑपरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं R2 की जगह पे R2 माइनस 2R, R3 की जगह पे R3 माइनस 3R1 और R4 की जगह पे हम लोग कर सकते हैं R4 माइनस 6R1। तो इससे क्या होगा, हमें इस मैट्रिक्स में ढेर सारे जीरोस दिखने के चांसेस हैं। ये रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब हमें यहाँ पे ढेर सारे जीरोस दिख रहे हैं, तो जीरोस का नंबर हम लोग बढ़ाने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और जीरोस लाने के लिए लाइक इस R4 को हम लोग ये 5 + 4 9 मतलब R2 + R3 करके इस R4 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसके बाद का ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं R4 की जगह पे R4 माइनस R2 + R3 और उसके बाद जो मैट्रिक्स का फॉर्म आएगा वो कुछ इस तरह होगा। ये हमारा फोर्थ रो कम्प्लीटली जीरो हो चुका है और इसके बाद जो ये थर्ड रो है उसमें और भी जीरोस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये हम और रो ऑपरेशन लगा के ट्राई कर सकते हैं। लाइक लेट अस टेक R3 की जगह पे 5R3 माइनस 4R2 अगर लगाएं हम लोग तो इस मैट्रिक्स का वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा 1। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये रो कम्प्लीटली जीरो नहीं कर पा रहे हैं कोई भी रो ऑपरेशन से। तो मतलब एक 3x3 मैट्रिक्स तो एटलीस्ट बन सकता है जिसका कि वैल्यू जीरो ना हो। तो यहाँ पे हम लोग रैंक डायरेक्टली इस रो इक्लॉन फॉर्म का यूज करके लिख सकते हैं 3, क्योंकि इसके फर्दर हमारा ये मैट्रिक्स रो इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो इस गिवन मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा। ओके, सो अगर हम लोग अब आगे बढ़े तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा के अंदर, तो अब इसे कवर करते हैं हम लोग। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होमोजीनियस इक्वेशन और एक होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन का केस देखते हैं हम लोग। ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। मीन्स कंसिस्टेंट कहने का मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशन। होमोजीनियस इक्वेशन के केस में सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग अगर होमोजीनियस इक्वेशन का एग्जांपल देखें तो ये एक बेसिक फॉर्म होता है होमोजीनियस इक्वेशन का। a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1z1 इज इक्वल टू 0, a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2z1 इज इक्वल टू 0 एंड a3x1 प्लस b3y1 प्लस c3z1 इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस को अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे इन सारे इक्वेशंस के कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 and c3। ये कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं x1 y1 एंड z1। तो ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो इस पूरे मैट्रिक्स को अगर हम लोग ए मानते हैं तो कुछ बेसिक रूल्स याद कर सकते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी काफी मदद करेगा। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का केस हमेशा कंसिस्टेंट होगा, मींस हमेशा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन होने के जो केसेस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे या तो जीरो सॉल्यूशन हो सकता है या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन हो सकता है।
उस जीरो सॉल्यूशन को हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं और नॉन जीरो सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो एक होता है जीरो सॉल्यूशन, जिसको कि ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग, और एक होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन, जिसको कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। तो जीरो सॉल्यूशन के केस में इस ए मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। और अगर ए मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होगा, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन दी होती है तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा, मींस उसके पास, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा ही होगा। और सॉल्यूशन होने का दो केसेस है, या तो जीरो सॉल्यूशन होगा या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। जीरो सॉल्यूशन को ही हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जीरो सॉल्यूशन के केस में जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होगा वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगा, और नॉन जीरो सॉल्यूशन के केस में जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होगा वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होगा। तो ये तो था होमोजीनियस इक्वेशन का केस। और अगर हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का केस देखें तो उसमें हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होता है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं वो या तो कंसिस्टेंट हो सकते हैं या तो इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। मीन्स या तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन हो सकता है या फिर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। अगर हम देखें किसी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का बेसिक फॉर्म, तो वो कुछ इस तरीके का होगा। a1x1 plus b1y1 plus c1z1 is equal to d1, a2x1 plus b2y1 plus c2z1 is equal to d2, a3x1 plus b3y1 plus c3z1। जो आरएचएस में यहाँ पे 0 0 0 था होमोजेनियस इक्वेशन के केस में, वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के केस में कोई कांस्टेंट या कोई टर्म्स आ जाते हैं d1 d2 d3। तो ये होता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का केस। और इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरीके का होगा, लाइक a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये सारे कोफिशिएंट्स एक जगह पे होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे x1 y1 z1, और उसके बाद d1 d2 d3। ये इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। सो अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास नॉन होमोजीनियस होते हैं तो उसके लिए ये कंडीशंस होते हैं कि या तो वो कंसिस्टेंट हो सकता है या तो वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इन दोनों केसेस के लिए जो कंडीशंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, लाइक तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के कंसिस्टेंट होने के लिए एक मस्ट कंडीशन है कि जो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, हियर इट इज ए मैट्रिक्स। सो इस ए मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, इफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम लोग इस ए मैट्रिक्स और इस डी मैट्रिक्स दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, एंड जो आरएचएस वाले टर्म्स थे d1 d2 d3। तो ये उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, इस नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये होगा, जो कि उस पर्टिकुलर फॉर्म में 3x4 का मैट्रिक्स होगा। तो ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। तो अगर ये जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होगा उस रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इक्वल होगा, तभी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। इस ए मैट्रिक्स के रैंक के बराबर अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक होगा, तभी वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। और इसके अंदर भी दो कंडीशंस होंगे, एक या तो यूनिक सॉल्यूशन की,
तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो। और एक केस हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। तो ये केस कब होगा? जब ए मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल तो होगा, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स से छोटा होगा। तो वैसे केस में उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इनकंसिस्टेंसी वाली कंडीशन होगी, मीन्स उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ऐसे केस में जो ए मैट्रिक्स होगी उसका रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। तो ये था नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का केस। तो इस केस में या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होंगे दिए हुए वो कंसिस्टेंट हो सकते हैं, मीन्स उसका सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, मीन्स उसका सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। तो अगर कंसिस्टेंट होता है तो वैसे केस में ए मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल होना चाहिए। और अगर इक्वल हो जाता है तो दो केसेस बनता है, या तो उस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर उस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होता है तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल है, मीन्स कंसिस्टेंट तो है ही, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, यहाँ पे जैसे 3 वेरिएबल्स थे x1 y1 0, और उससे कम आता है इस टोटल मैट्रिक्स का रैंक, तो उस केस में वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी। और अगर रैंक ऑफ ए जो होगा और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं होगा तो ऐसे केस में सॉल्यूशन होगा ही नहीं, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे। और एक इंपॉर्टेंट टर्म और होता है नलिटी, जिसको कि नल स्पेस भी बोलते हैं, और जिसको कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, या फिर जिसको डायमेंशन स्पेस भी बोलते हैं। तो इसको अगर सिंपली कैलकुलेट करने देता है तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उनमें से जो फॉर्म मैट्रिक्स होते हैं कोफिशिएंट से, उसका रैंक सब्ट्रैक्ट करने पे नलिटी या फिर नल स्पेस या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर डायमेंशन स्पेस ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को और अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करके समझा जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए कोई नॉन जीरो वेक्टर एक्स एग्जिस्ट करता है, तो वैसे केस में अगर ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है और ये लैम्डा कोई स्केलर वैल्यू है, तो यही लैम्डा वैल्यू उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए आइगन वैल्यू कही जाएगी। A scalar lambda is called eigenvalue of a square matrix A if there exists a non-zero vector x such that x is equal to lambda x. ओके, और इस आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इक्वलाइज करते हैं जीरो से। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि होता है लैम्डा आई माइनस ए, इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करके लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। और ये लैम्डा आई माइनस ए या फिर ए माइनस लैम्डा आई कुछ भी हो सकता है, और दोनों से वैल्यू सेम ही आती है, तो वो देख के अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म्स देख के कंफ्यूज नहीं होना होता है। फॉर एवरी आइगन वैल्यू लैम्डा, if there exists a non-zero vector x such that lambda I minus a into x is equal to 0, then in that case x will be the eigenvector of matrix A. The eigenvalues and eigenvectors are very important concept in the study of linear algebra, in the study of matrices. Now let us have a look upon the properties of eigenvalues and eigenvectors. The first property, sum of eigenvalues is equal to the trace of the matrix. Trace, we know that it is equal to the sum of diagonal elements. So sum of diagonal elements is equal to sum of eigenvalues in any matrix. उसके बाद the product of eigenvalues is equal to the determinant value of any matrix.
So these are important points we need to remember always. And eigenvalues of A matrix and its transpose. The eigenvalues of A and A transpose are always same. Also, eigenvalues of a triangular or diagonal matrix are its leading diagonal elements itself. जो भी हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ही उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज होते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट्स वन है तो वैसे केस में उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज 0 0 0 अप टू एन, वो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वो उसकी आइगन वैल्यूज होगी। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो वैसे केस में ए बी और बी ए मैट्रिक्स दोनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होगा। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो वैसे केस में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ए बी एंड बी ए मैट्रिसेस की सेम आएगी जब ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के। तो और अगर लैम्डा आइगन वैल्यू किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए का, नॉन सिंगुलर मीन्स वो मैट्रिक्स जो होगी उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो वैसे केस में अगर लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो ए इनवर्स मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा होगा। मीन्स इस आइगन वैल्यू का रेसिप्रोकल ही इनवर्स मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा। और अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसके एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें आइगन वैल्यू फाइंड करना है, तो उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा, उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू। तो ये इक्वेशन एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आइगन वैल्यू देगी। और अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो उस केस में अगर हमें के ए मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट के, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी हो, और सारी आइगन वैल्यूज में के से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। द मल्टीप्लाइड वैल्यू विद के गिव्स द आइगन वैल्यूज ऑफ के मल्टीप्लाइड विद ए, दिस मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स पे पावर m होते हैं, तो वैसे केस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n जो आइगन वैल्यूज है सारे पे पावर m करके वैसे मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सब लोग निकाल सकते हैं। और अगर वो मैट्रिक्स में प्लस की आई अगर ऐड करते हैं, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद एनी कांस्टेंट, तो वैसे केस में वो आइगन वैल्यू प्लस माइनस दैट के कांस्टेंट वैल्यू will be the eigenvalue for such matrix A plus Ki. So these were some properties of eigenvalues and eigenvectors that are very useful and very important in solving the problems of matrices. And now we can have a look upon the Cayley-Hamilton theorem. So it states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. That is the determinant of A minus lambda I is equal to 0, or we know that it is same as determinant of lambda I minus E is equal to 0. So this condition needs to be satisfied by every square matrix. This is the statement of Cayley-Hamilton theorem. Now directly let us move on solving various problems in linear algebra. तो अब प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। इसमें वी हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। तो ये हमारे आइगन वैल्यूज के प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ रखा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स इक्वल टू 1 आर 0 0 0 up to n, where n is the order of the matrix. So here in this question, this order of the matrix is 3 cross 3, means it is a third order matrix, and here the eigen values of this matrix based on that property will be 0 0 and 3. So its correct answer will be option D. Now next question, here a 5 cross 7 matrix is given in which its entries are equal to -1. So that matrix will be like this: -1 -1 -1 -1 -1. So using the reduced row echelon form of this matrix, we can reduce this matrix by subtracting second row from the first row, by subtracting third row from the first row, and similarly by subtracting all rows from the first row, we can get the reduced matrix as -1 -1 -1 -1 and -1, and the rest elements will be 0. So here
clearly the rank of the matrix will be equal to 1. As only one row is non-zero here, so the rank of the matrix will be equal to 1 here. Option C will be correct. Now next question, we will see that here a matrix A is given and we have to find the sum of eigenvalues. So we know that the sum of eigenvalues is equal to trace of the matrix. So here if we'll consider the trace of the matrix, it will be these elements. So that is 2 plus 1 plus 3 plus 4 and it will be equal to 10. So answer will be A. Now we have to find the eigenvalues of this given matrix. So here we can simply calculate the eigenvalues by using this Cayley-Hamilton theorem. Lambda I minus A is equal to 0. So here if we will calculate this value, lambda minus 0, 1, 0, 0, again lambda minus 0 and 1, then 0, minus 3 and lambda minus 4. By equating this determinant value with 0, we can get the value of lambda and that will be the eigenvalue of this given matrix. Here we will be getting the value of lambda as 0, 1 and 3. So 0, 1 and 3, option D will be the right answer. तो अब इस क्वेश्चन में ax इज इक्वल टू आर दे रखा है और यहाँ पे a का वैल्यू, x वेक्टर का वैल्यू और r का वैल्यू दे रखा है. तो इस केस में पूछ रहा है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A इज व्हाट. तो यहाँ पे दे रखा है ax इज इक्वल टू r एंड वी नो दैट, यहाँ पे हमने पहले पढ़ रखा है कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x किसी भी आइगन वैल्यूज के केस में. तो हम लोग ये जानते हैं ax इज इक्वल टू लैम्डा x. नाउ फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ a एज 2, 1, 4. This will give a into x is equal to r, that is 32, 16, 64. So when we will write the same as, we can take 16 common out from here, that will be 2, 1 and 4. So this format is being satisfied by this equation. So ax is equal to lambda x. So lambda will be 16. So one of the eigenvalues of this matrix A will be 16. So D will be correct answer. Now let us see the next question. 2 cross 2 matrix. So we have to find it conventionally by solving lambda I minus A is equal to 0. So here we will solve this like lambda minus 4, 2, 1 and lambda minus 3, that will be equal to 0. So lambda minus 4 into lambda minus 3 minus 2 is equal to 0. So here the lowest value of the eigenvalue will be 2. So option B will be correct answer. So now we have to find the value of k, for which the given system of equations will be having infinitely many solutions. So this is the case of non-homogeneous equation. So for having infinitely many solutions in the case of non-homogeneous equations, we have seen that for infinitely many solutions, the rank of matrix A is equal to the rank of augmented matrix, and that is less than the number of variables.
So applying this formula in that question, here we know that the rank of A will be equal to the rank of augmented matrix, and that will be less than number of variables. यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, x, y और z। तो इस हिसाब से हम अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 minus 2 and 3, and that minus 1 will be written here as minus 1. And now the second equation, 1 minus 3, 4, and this 1, and now minus 2, 4, 6, and this k. The rank of this augmented matrix will be less than 3. So इस केस में सबसे पहले हम reduced row echelon form लगाते हैं। तो so let us try to bring some zeros in these two rows. So let us apply the row operation as R2 के जगह पे R2 minus R1। तो इस केस में क्या होगा, 1 minus 2, 3 and minus 1. At place of R2, 1 minus 1 will be 0, minus 3 minus 2 will be minus 1, 4 minus 3 will be 1, 1 minus 1 will be 2. Now for R3 also let us apply R3 के जगह पे R3 plus 2 R1। तो इस केस में minus 2 plus 2 that will be 0, 4 minus 4 that will be 0, and 6 minus 6 that will be 0, and here k minus 2 that will be k minus 2. So definitely this value will be 0 also, because the rank of this matrix is definitely less than 3, so this value will be 0. Now equating this k minus 2 with 0, we can get the value of k is equal to 2. So this is the right answer. The value of k will be 2 here.